Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video, I have taken some daily use English sentences for you, so watch the video carefully. तुम खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो. So its English will be you can't buy happiness. You can't buy happiness. खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं. Happiness can't be bought. Happiness can't be bought. Can't is a contraction of can and not. आप कौन सी दवा की सलाह देते हैं? What medicine do you recommend? What medicine do you recommend? आपको अच्छा खाना चाहिए. Its English will be you should eat healthy. You should eat healthy. Healthy means proper diet you should take. मेरे पास ये फिर करने की हिम्मत नहीं है. I don't have the courage to do it again. I don't have the courage to do it again. अपनी सीट बेल्ट लगा लो. Its English will be please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. It is imperative sentence. आपको भविष्य के लिए पानी बचाना चाहिए. You should save water for the future. You should save water for the future. आपको रसोई में पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए. You should try to save water in the kitchen. You should try to save water in the kitchen. मैं एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ. I exercise because I want to stay healthy. I exercise because I want to stay healthy. बच्चे सो रहे हैं, कृपया शोर मत मचाओ. The children are sleeping. Please don't be so noisy. Please don't be so noisy. ये मेरा जुनून है. So its English will be it's my passion. It's my passion. It is a contraction of it and is. मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ. I write for you. I write for you. It is present indefinite tense. उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं. His hair is pure white. His hair is pure white. मैं रोज़ सुबह 100% प्योर एप्पल जूस पीता हूँ. आई ड्रिंक 100% प्योर एप्पल जूस एवरी मॉर्निंग. आई ड्रिंक 100% प्योर एप्पल जूस एवरी मॉर्निंग. तुम्हारी अच्छी भूख है. सो इट्स इंग्लिश विल बी व्हेन समबडी ईट अ लॉट ऑफ फूड. सो आप कह सकते हैं यू हैव अ हेल्दी एपिटाइट. यू हैव अ हेल्दी एपिटाइट. वो पैदाइशी तंदुरुस्त है. इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ बॉर्न हेल्दी. ही इज़ बॉर्न हेल्दी. आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वो बहुत तंदुरुस्त था. द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज़ वेरी हेल्दी. द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज़ वेरी हेल्दी. क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? व्हेन यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड शॉप सो यू कैन आस्क फॉर डिस्काउंट. कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट? कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट? मुझे यह मूवी बहुत अच्छी लगी. आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाउंड दिस मूवी वेरी इंटरेस्टिंग. तुमसे नौकर की तरह बर्ताव किया जाएगा. यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट. यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट. नौकर की तरह बर्ताव मत करो. डोंट बिहेव लाइक अ सर्वेंट. Don't behave like a servant. It is also imperative sentence. Don't is a contraction of do and not. मैं तुम्हें 6 बजे लगभग लेने आऊँगा. I will pick you up around 6. I will pick you up around 6. मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान लगा. I found it easy to answer this question. I found it easy to answer this question. मुझे नहीं पता उसके सवाल का जवाब कैसे देना है. I don't know how to answer his question. I don't know how to answer his question. मैंने सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाया. I raised my hand to ask a question. I raised my hand to ask a question.
question. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of a sentence. As usual in every video I ask you sentences, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है, and you want to recognize somebody, so somebody ask for the photo, so translate this sentence to English. मैं अपनी बीबी का वफादार हूँ. So it's a kind of funny sentence, you know. I am faithful to my wife. I am faithful to my wife. उसने मुझसे झाड़ू लगाने के लिए हुक्म किया. He ordered me to sweep the floor. He ordered me to sweep the floor. जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा. I felt sorry for her when I heard her story. I felt sorry for her when I heard her story. क्या आपके पास कुछ घोषणा करने के लिए है? Do you have anything to declare? That is why the reason you have come somewhere. Do you have anything to declare? इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है? व्हेन यू मेट विद एन एक्सीडेंट, सो यू आस्क फॉर द इमरजेंसी एग्जिट इन द बस और मे बी एरोप्लेन. वेयर इज़ द इमरजेंसी एग्जिट? वेयर इज़ द इमरजेंसी एग्जिट? वो हाँ नहीं कहेगा. व्हेन यू आर डेड श्योर somebody is not going to agree with the point. He will not say yes. He will not say yes. सब मेरी सफलता से जलते थे. Everybody was jealous of my success. When you reach up to the certain height, so everybody started jealousing of you. ज़िंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of life? What is the main purpose of life? सवाल है कि यह करेगा कौन? The question is who will do it? The question is who will do it? उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा. He asked a very good question. He asked a very good question. It is past and definite tense. क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? Do you have a question? Do you have a question so that you can ask out somebody? मेरे पास सवाल है. When somebody has a question to be sorted out, so he can say I have a question. I have a question. मैंने उससे झाड़ू लगवाई. I made him sweep the floor. He must have done the mess, so who else will sweep the floor rather than him? I made him sweep the floor. उसका विरोध मत करो. So विरोध इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अपोज करना किसी का. Don't oppose him. Don't oppose him. प्लास्टिक आसानी से नहीं जलती है. प्लास्टिक डजंट बर्न ईजीली. प्लास्टिक डजंट बर्न ईजीली. ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं पागल हूँ. मोस्ट पीपल थिंक आई एम क्रेज़ी. मोस्ट पीपल थिंक आई एम क्रेज़ी. क्या तुम सोचते हो मैं पागल हूँ? डू यू थिंक आई एम क्रेज़ी? डू यू थिंक आई एम क्रेज़ी. सबने एक ही चीज़ खाई. एवरीवन एट द सेम थिंग. एवरीवन एट द सेम क्वालिटी ऑफ द फूड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं. उसने मुश्किल से कुछ खाया. ही हार्डली एट एनीथिंग. ही हार्डली एट एनीथिंग. मैं अपना कमरा जितना हो सकता है उतना साफ़ रखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कीप माई रूम एज नीट एज पॉसिबल. आई वॉन्ट टू कीप माई रूम एज नीट एज पॉसिबल. अपना कमरा जितना साफ रख सकते हो उतना रखो. कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन. कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा. सो इट्स इंग्लिश विल बी आई विल लव यू फॉर एवर. आई विल लव यू फॉर एवर. मुझे मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. आई हेट मैथमेटिक्स वेरी मच. आई हेट मैथमेटिक्स वेरी मच. उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है. So its English will be he must be at the higher post. He receives a high salary. He receives a high salary. मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है. I don't feel like working. When you are feeling like taking a rest for a day or not working, I don't feel like working. English मेरा मन पसंदीदार सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर आप you can change English with any of your favorite subject. English is my favorite subject. क्या मूवी अच्छी थी? वॉज द मूवी गुड? वॉज द मूवी
good when you went to the theater to watch a movie, somebody asked for your review. उसने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया. He refused my invitation. He refused my invitation. मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया. I accepted his invitation. I accepted his invitation. मैं तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ. I admire you for your courage. I admire you for your courage. मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ. सो व्हेन यू डन समथिंग स्पेशल एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ब्रेवरी, आई एडमायर योर करेज. आई एडमायर योर करेज. पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया. द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ. द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ. अपनी कैप उतारो. सो इट्स इंग्लिश विल बी टेक ऑफ योर कैप. Take off is a phrasal verb. To undone something is the meaning of that. Take off your cap. वो बहुत पिया हुआ था. He was very drunk. He was very drunk. When somebody is drink, he is in the infliction of alcohol. क्या तुम अपनी तनख्वाह से खुश हो? Are you satisfied with your salary? Are you satisfied with your salary? उसे गणित में दिलचस्पी है. He is interested in mathematics. He is interested in mathematics. 6 बजे से पहले घर आ जाना. Come home before 6. Come home before 6. इस कैप की क्या कीमत है? What's the price of this cap? What's the price of this cap? वो निराश था. He was disappointed. He was disappointed. निराश मत हो. Don't be disappointed. Don't be disappointed. तुम्हारी कैप कहाँ है? Where is your cap? Where is your cap? मैं इस समस्या को नहीं निपटा सकता हूँ. I can't solve this problem. I can't solve this problem. मेरे पास एक डिक्शनरी है. So it's a good habit to keep a pocket dictionary with us because we are the learners. I have a dictionary. तुम बहुत बहादुर हो. So its English will be you are very brave. You are very brave. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया. I ate too much. I ate is a second form of eat because of past and definite tense is there. I ate too much. So यही थे आज के कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए. और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि मैं और वीडियोस कंटिन्यू कर सकूं ऐसे ही. और मुझे अपना रेस्पॉन्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे मैंने कलेक्ट किए हैं फॉर दिस वीडियो. सो उम्मीद यही है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना कुछ नहीं है. यू डोंट हैव टू पे मी इन टर्म्स ऑफ मनी. यू जस्ट hit the like button for telling me how much you like this video, and you can also dislike this video if you found any shortcoming in me. So definitely आप प्लीज़ डिसलाइक करिए वीडियो को. प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर बताइए कि what was the reason because of and behind your dislike on this video. Okay, I will be pleased to know that. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक शेयर कर दो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से अभी लॉकडाउन भी है, मतलब पार्शियल लॉकडाउन है. तो उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए और वो लोग भी थोड़ा बहुत सीख सकें इस वीडियो से. एंड यही मैं उम्मीद करूँगा और होप करूँगा. तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. Keep learning, keep practicing, and have fun in your life.